Hello everyone. Today's topic is Integral Humanism by Deen Dayal Upadhyay. This video is divided into two lecture. आज हम lecture 1 करेंगे. तो हम सबसे पहले देखते हैं introduction. Deendayal Upadhyay, a prominent thinker and politician in post-independence India. Upadhyay played a pivotal role in the Jan Sangh, the precursor to today's Bharatiya Janata Party (BJP). ये इनका नॉर्मल इंट्रोडक्शन है क्योंकि जो फिलोसफिकल इंट्रोडक्शन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फिलॉसफी है जिसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी देखा गया वो ये कॉन्सेप्ट है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी is best known for developing the concept of integral humanism, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इसको हम कहेंगे एकात्म मानववाद। A socio-political philosophy that seeks to harmonize individual and collective welfare, blending spirituality with practical गवर्नेंस। तो ये कैसे इंडिविजुअल और कलेक्टिव एस्पेक्ट दोनों को एक साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ग्रोथ डेवलपमेंट तभी होगा जब हम इसको सिंक्रोनाइज वे में देखेंगे। So developed in the mid 20th century, this ideology has profoundly influenced India's political landscape and continues to resonate in contemporary discourse. His vision emphasized cultural revival, self-reliance, and a holistic approach for development, aiming to create a just and equitable society grounded in India's rich cultural heritage and values. Born out of deep appreciation for India's ancient wisdom and tradition, integral humanism seeks to integrate human life's spiritual and material dimension. तो ह्यूमन बॉडी सिर्फ फिजिकल ह्यूमन बॉडी नहीं है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, वो है स्पिरिचुअलिटी का, जो हमें इस फिलॉसफी में देखने को मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इंडियाज प्राइमरी कंसर्न should be developing an indigenous development model with human beings as its core focus. Now, key principles and concepts. Integral humanism aims to ensure a dignified life for every human being while balancing the needs of individuals and society. Integral humanism possesses that individuals are not merely economic beings but possess inherent spiritual and moral dimension also that must be nurtured for holistic development. वो कहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कमाने, खाने या इंजॉय करने के लिए ही बस है और इस दुनिया में इसलिए ही उसका एग्जिस्टेंस है, नहीं। मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, ये दो ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसको साथ लेकर ही डेवलपमेंट पॉसिबल है, ग्रोथ पॉसिबल है। सो उपाध्याय ड्रू फ्रॉम इंडियाज रिच फिलोसफिकल हेरिटेज including Vedantic principles of unity and harmony, to propose a socio-economic model that respects individual dignity while emphasizing the collective welfare of society also. So Upadhyay emphasized the importance of decentralized governance, self-reliance, जिसको हम स्वदेशी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, and the need for an economic framework that empowers local communities. So he advocated for a balanced approach that respects the dignity of labor, values environmental sustainability, and promotes social justice without resorting to class conflict.
Integral humanism also uh, underscore the role of cultural identity in shaping political and economic policies. Upadhyaya believed that India's cultural ethos should inform its governance and development strategies, asserting that cultural revival and self awareness are essential for nature progress. Now, uh, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये टर्म जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सेल्फ रिलायंस। क्योंकि हम कंटेम्प्रेरी फिलोसफर जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी फिलोसफर में एक जो बहुत बड़ा कॉमन विचारधारा है वो क्या है, स्वदेशी का जो सिद्धांत है उसको वो ज़रूर फेवर करते हैं, उसको वो ज़रूर अपने अपने ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो महात्मा गांधी हो गए, है ना, या दीनदयाल उपाध्याय हो गए। लास्ट में भी हमने जितने भी फिलोसफर किए हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफर में या फिलोसफी में, उसमें आप देखो ये कॉन्सेप्ट हमें ज़रूर देखने को मिलता है। सो द फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थ्री प्रिंसिपल। वो क्या है? फर्स्ट इज प्राइमरी ऑफ अ होल, नो पार्ट। सबको, इंटीग्रल का मतलब ही यही है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलरिटी की तरफ नहीं चल रहे, पर्टिकुलर इवेंट या थिंग्स की बात नहीं कर रहे, हम कंप्लीट समुच्चय की बात कर रहे हैं, हम होल की बात कर रहे हैं। देन सेकेंड इज सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा। धर्म जो बताए हैं पुरुषार्थ चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें से धर्म को बहुत सुप्रीम माना गया है और वो हम डिस्कस करेंगे कैसे। एंड थर्ड इज ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी। सो इससे पहले हम पढ़ते हैं कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मार्क्सिज्म, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको ही, इन दोनों फिलॉसफी को नकारते हुए ही वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। सो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन रेफर्स टू द इकोनॉमिक सिस्टम वेयर कैपिटलिस्ट, जिनको हम पूंजीवादी भी कहते हैं, who own and control the means of production, exploit workers for profit. So, this exploitation occurs because workers who sell their labor for wage typically don't receive the full value of their labor. Instead, capitalists pay workers less than the value they create through their labor, allowing capitalists to accumulate wealth and capital. तो जो वर्कर हैं, जो श्रमिक हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा शोषित किया जाता था। उन्हें जितना वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसका आधा या आधे से आधा भी उनको नहीं मिलता था। उनको उनको एज सच कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। द वर्कर्स वर इकोनॉमिकली वीक एंड अनऑर्गेनाइज्ड, मेकिंग देम विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, injustice, and harassment. The political leaders were part of the same group that exploited the workers, leaving little hope for justice from the state. और ये तो कैपिटलिस्ट व्यू हो गया। ये हालांकि कैपिटलिज्म को डिफाइन करना इतना इजी नहीं है कि दो लाइन में या दो चार शब्दों में आप डिफाइन कर दें, बट ये इसका मेन आइडिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क्सिज्म क्या कहता है। Marxism, developed by Karl Marx and Friedrich Engels, critique capitalist exploitation and advocate for a socialist revolution to overthrow the capitalist system. वो कहते हैं कि हम ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है या जो पूंजीवाद है, हम इसके विरोध में बात करते हैं और हम थ्योरी लेके आते हैं। एक दूसरी थ्योरी वो क्या है? वो है, Marx argue that capitalism inherently leads to class conflict between the bourgeois and the proletariat, जिसे वर्किंग क्लास भी कहते हैं। कि कहते हैं कि ये दो क्लास हैं, एक तो पूंजीवादों की और एक श्रमिकों की। और ये जो पूंजीवाद है वो श्रमिकों को क्या कर रहा है? एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये दो क्लास हैं। इस तरह से क्लास डिवीजन या क्लास कॉन्फ्लिक्ट ये क्रिएट करता है। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म,
The goal is to establish a classless society where workers collectively own and control the means of production, leading to a more equitable distribution of wealth and resource. तो जो मार्क्सिज्म की थियोरी वो क्या कहते हैं कि ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट को हटना चाहिए, और जो पावर है या फिर जो सोसाइटी है वो क्या होनी चाहिए, क्लासलेस। जो कंट्रोल है वो वर्कर्स के पास होना चाहिए। इस तरह से क्या होगा, according to Marx theory of dialectic materialism, the root cause of exploitation is the private ownership of production resources. तो यहाँ पे किसी की प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, क्या होगी, कलेक्टिव ओनरशिप होगी, तो कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। So if these resources are owned by society, which for Marxist means the state, exploitation will end. Marx also argued that capitalism would eventually destroy itself, making socialism inevitable. अब ये जो दो थ्योरी हमारे सामने हैं, इनको अपोज करते हुए, इन दोनों को, कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म को और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को, दोनों को अपोज करते हुए पंडित दीनदयाल जी क्या कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपोज्ड बोथ वेस्टर्न कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट individualism and Marxist socialism. According to him, capitalist and socialist ideologies only consider the needs of human body and mind. So they are based on materialistic purpose. दोनों क्या हैं, materialistic approach को कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते हैं, कैपिटलिज्म भी और मार्क्सिज्म भी। So, whereas spiritual development is equally considered important for the complete development of human being, which missing in both capitalism and socialism. So, according to Upadhyay, the primary concern in India must be the develop in indigenous economic model that puts the human being at center age. तो इंटीग्रेशन जो है और ह्यूमन सेंट्रलिटी जो है वो कैसे आएगी, जब हम स्वदेशी का विचार लेकर आएंगे। सो फर्दर, this idea is not about individual versus society but the idea of integration in the society. जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ना हम केवल इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, ना केवल हम सोशल लेवल पे बात कर रहे हैं, हम इन दोनों के इंटीग्रेशन को लेकर फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट एन इंडिया आइडिया ऑफ मैन वर्सेस नेचर बट एन आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन मैन एंड नेचर। एंड इन इंडिया इट इज कॉल्ड धर्मा, या तो अभिधेय निश्रेयस संसिद्धि सा धर्मा। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट इट इज थॉट ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि एंड परमेष्टि। ये चारों टर्म क्या हैं, हम इसे भी डिटेल में पढ़ते हैं, और इनका एकात्म होना चाहिए, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि, तब जाके कंप्लीट डेवलपमेंट पॉसिबल है। दीज टर्म्स व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि एंड परमेष्टि कैन बी अंडरस्टूड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिलोसफिकल and cultural perspective, particularly in Indian thought. The first is Vyasti, refers to the individual or the particular. जैसे व्यक्ति होता है ना, जो उस कहीं आप उसी से समझ सकते हैं, व्यष्टि, इट एम्फेसाइज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक quality and action of individual entity. So Vyasti focuses on the microsomes, the individual specific role and its relation to the broader whole. तो इंडिविजुअल एंटिटी या ह्यूमन बीइंग की क्या क्वालिटी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो व्यष्टि को रेफर करते हैं। देन सेकंड इज समष्टि, denotes the collective or universal. It encompasses the entirety or the macrosomes, emphasizing the interconnectedness and unity of all being and phenomena. तो ये आप देख सकते हैं, व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के अगेंस्ट है। एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है तो एक यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है।
Samasti looks at the larger picture, the collective existence, and the universal principle that govern it. Now, the third is Srishti, means creation और manifestation. सृष्टि जिसे हम देखिए दुनिया को भी बोलते हैं सृष्टि, क्योंकि हमें पता है ये मैनिफेस्ट हुई है, ये क्रिएट हुई है. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, the emergence of the universe, or the generation of diversity and forms within existence. So, Srishti explores how the world comes into being, evolve and sustain itself. कैसे सृष्टि हुई है, कैसे वो विकसित हुआ है और कैसे वो अपने आप चल रहा है. Then परमेष्ठी indicates the transcendental or the divine. जैसे परमेश्वर बोलते हैं ना, परमेष्ठी. So it signifies the ultimate reality or the supreme consciousness that transcend the manifest वर्ड. तो पहले क्या होता है कि हम इंडिविजुअल, देखिए ये जो चार शब्द है ना, कुछ ऐसे चलते हैं कि हमें कैसे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जब ये चारों चीज आ जाएंगी, जब आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, देन फिर आप जाएंगे यूनिवर्सल, फिर यूनिवर्सल की तरह आप आ जाएंगे पूरा होल कंप्लीट मैनिफेस्टेशन, एंड देन आप आ जाएंगे डिवाइनिटी की तरफ या फिर गॉड. ये सब किसी एक पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो वो इनकम्प्लीट होगा. जब आप इसको कंप्लीट इंटीग्रेशन के साथ देखेंगे तो डेवलपमेंट जो होलिस्टिक और ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होगा. नाउ सो इन समरी, these terms delineate different perspective in understanding existence, from the individual to universal, the process of creation and the ultimate spiritual reality. They reflect a holistic view prevalent in Indian philosophical tradition, capturing both the diversity and unity inherent in the cosmos. कि हमें पता है कि डाइवर्सिटी भी है एंड उनमें यूनिटी भी है. इसके बाद आता है इंटीग्रल हैप्पीनेस. क्योंकि हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो समग्र सुख का भी एक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आता है. सो इंटीग्रेशन इज प्रेजेंट इन कंप्लीटनेस. इन द लैक ऑफ कंप्लीटनेस मैन इज अफेक्टेड बाय पार्शियल विजन. अगर आप किसी भी मतलब जो एस्पेक्ट्स हैं, अगर उसमें से आप एक एस्पेक्ट को हटा देंगे तो वो इनकम्प्लीट रह जाएगा और जो सुख है वो भी इनकम्प्लीट रह जाएगा. सो एज द यूनिवर्स इज कंप्लीट, so an individual is also complete. The individual does not only mean physical being, but he also has a mind, intellect and soul. तो आप देखो कि जो चार एस्पेक्ट हैं, क्या फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, माइंड हो गया, फिजिकल में आपकी बॉडी आ जाती है. सो बॉडी, माइंड, spirit, soul, यानी intellect and soul. So if any of these four is ignored, the happiness of man will be handicapped. कहते हैं ना कि मान लीजिए आपका मन अच्छा नहीं है तो आपकी बॉडी में भी उसका इफेक्ट दिखेगा, और अगर आपकी बॉडी बीमार है, कोई डिसीज़ है, तो आपके मन में भी, आपकी सोल पर भी, इंटेलेक्ट पर भी उसका इफेक्ट दिखता है. सो इसलिए अगर इन चारों में से किसी को भी इंक्लूड नहीं किया या कहीं भी उसको छोड़ दिया तो जो कंप्लीटनेस है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी. सो ही नीड्स इंटीग्रल एंड इंटेंस हैप्पीनेस विच इज़ कॉल्ड जॉय और ब्लिस, जिसे हम आनंद कहते हैं. वो तभी आएगा जब वो इंटीग्रेशन में होगा, अदरवाइज नहीं. सो इन द सेम मैनर, the society is not the only government. It has its own culture, people and country. Without the proper movement of these four, happiness of samasti is not possible. इन दोनों के इंटीग्रेशन के बिना समष्टि यानी जहाँ आप बिल्कुल एंड तक पहुँचते हैं, जो गॉड हो गया, जो सुप्रीम लेवल है, वो नहीं मिल सकता. नाउ
फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन काइंड, जैसा कि मैंने कहा था कि पुरुषार्थ जिसको हम बोलते हैं क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. So humankind, according to Upadhyay, had four hierarchically organized attributes of body, mind, intellect, and soul, which correspond to the four universal objective of dharma, artha, काम, मोक्ष. ये चार होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. तो जो अब हम देखते हैं कि while none could be ignored, dharma is the basic and moksha is the ultimate objective of humankind and society. He claimed that the problem with both capitalist and socialist ideology is that they only consider the need of body and mind. ये जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उन्होंने सिर्फ बॉडी एंड माइंड की नीड को देखा, and were hence based on materialistic objective of desire and wealth. So सबसे पहले हम देखते हैं supremacy of dharma. Even though dharma guided artha and kama, all three are interconnected and supported each other. Dharma helps achieve artha. Artha means इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आप देख सकते हैं. सो इन बिजनेस क्वालिटी लाइक ऑनेस्टी, रेस्ट्रेंट एंड ट्रूथफुलनेस विच आर पार्ट ऑफ धर्मा आर नीडेड. विदाउट दिस क्वालिटी आर नॉट, वन कैन नॉट अर्न मनी. इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं कि जब आप अपनी जीविका के लिए आप जब कुछ एफर्ट कर रहे हैं तो वो क्या ऑनेस्ट होना चाहिए. देयरफॉर धर्मा प्ले अ की रोल इन अटेंडिंग बोथ अर्थ एंड काम. इसी तरह काम कैन ओनली बी फुलफिल्ड थ्रू धर्मा, राइटनेस. And dharma helps control our nature urge, allowing us to choose what is truly beneficial rather than just pleasurable. कि ये धर्म हमें बताता है कि क्या आपके लिए ट्रूली बेनिफिशियल है. सिर्फ ऐसा नहीं है कोई चीज़ जो आपको सुख दे रही है या जो प्लेजरेबल है, प्लेजर दे रही है, नहीं. धर्मा आपको राइटनेस की तरफ ले जाता है. So therefore, dharma is highly valued in our culture. Then artha, which means wealth and power, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, also include political aspect. When the state has too much power, it can harm dharma. A king should neither to be too harsh nor too lenient, as harsh measurement can lead to rebellion. So when the state take over the role of dharma, it leads to the decline of dharma. This often happens in ruthless state where the state has all the political and economic power, making society overly dependent on the state. So government officials then neglect their duties and pursue private interest. So these are sign of excessive state power which harms dharma. Therefore, artha should not dominate in these way. So we have looked at an individual's life in a complete and balanced way. Our aim is to develop the body, mind, intellect and soul equally. We have tried to meet various human aspirations without letting one conflict with another. This is the holistic view of an individual's four main aspirations. These ideas of a complete and balanced person is both our goal and our path. ये इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है. देखा जाए तो स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन दीनदयाल उपाध्याय जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए कि जिस तरह से हमारी बॉडी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, है ना, इंटीग्रेशन में होनी चाहिए, तब जाके हमें कंप्लीट हैप्पीनेस मिलेगी. उसी तरह जो ग्रोथ है, ह्यूमन ग्रोथ, वो तभी जब पूरी तरीके से इंटीग्रेशन होगा, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि, इस तरह से जब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब धर्म के अंडर में होंगे, सुपरविजन में होंगे, तब जाके वो चीज़ मिलेगी. इसलिए वो बताते हैं हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिवनेस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे, जिसमें मेन फिलॉसफी जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म ये आएगा. ठीक है, सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच.